Did you know that Babar was the founder of the Mughal Empire? He was born in 1483 in Uzbekistan and was a descendant of Genghis Khan and Tamerlane. In 1526, Babar led an army of 12,000 soldiers to defeat the Sultan of Delhi, marking the beginning of the Mughal Empire in India. He died in 1530, leaving behind a significant legacy in the history of South Asia. बाबर का बाबरी नामक एक पुरुष के साथ संबंध थे, ये कहना है डॉक्टर रिजवान अहमद का। आइए पहले देख लेते हैं डॉक्टर रिजवान अहमद ने कहा क्या है। आज आपके चैनल पे बता रहा हूं कि बाबरी वाज अ 16-year-old बॉय जिसको बाबर अफगानिस्तान के काबुल के मार्केट से खरीद के लाया था। बाबर हैड अ फिजिकल रिलेशनशिप विद दिस बॉय कॉल्ड बाबरी जो इब्राहिम लोदी का अगेंस्ट बैटल ऑफ पानीपत में मारा गया था और उसकी याद में इस मस्जिद का नाम जब तामीर हुई थी तो बाबरी मस्जिद रखा गया था। दोस्तों आइए अब देखते हैं डॉक्टर रिजवान अहमद जो कह रहे हैं उस बात में कितना सच है। ये पुस्तक है जिसका नाम है द नेकेड मुगल्स। इसके तीसरे चैप्टर में जो ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। कैदियों के सिरां ते लुट मारता लिए आटा तुरंत पीसना शुरू करें। सभी बंदी आटा पीसने लगे और गुरु नानक देव जी चक्की को बहुत गौर से देखने लगे। गुरु को डाला जेल में तो जेल पावन हो जाएगी, चक्की चलती जाएगी, वो खुद ही चलती जाएगी। Yes, he was released. He was released by Babur. In fact, the folk tradition maintains that he then sought Guru Nanak's blessing, the ability to be able to rule India. Okay? What does that mean now? Think about that. I want to Somebody who imprisoned you is now seeking your blessing. So there's an acknowledgement happening here that there are wrongs we do, there are crimes we commit. Classically, we call them sins, but they're crimes at the end of the day, right? You commit against individuals and against yourself. So those acknowledgements are happening, the ideas of forgiveness are happening, and then working to create better systems is going on as well. Okay. Now I'll let you continue the story. Sure. So part of the story is, which I think will be very relevant today, is he's having dialogues with multiple lifestyles. Because earlier and even today, honestly, everything becomes spiritual and political. We run away from political and sometimes we overly hype the spiritual. Again, these are the common words. So he's going to those centers and having dialogues. He had dialogues with yogis. He goes to Jagannath Puri temple, where Mrs. Gandhi was not allowed to enter. It's that strict. I'm just putting a perspective. He goes to Makkah, where a non-Muslim cannot enter. क्या आप जानते हो आज से 165 इयर्स पहले सिखों ने ही राम जन्मभूमि मूवमेंट की शुरुआत की थी। यस, सिख्स ने ही इस मूवमेंट की नींव रखी थी और सिर्फ मूवमेंट की शुरुआत ही नहीं, 1858 में सिखों ने तो बाबरी मस्जिद पे कब्जा करके वहां हवन तक किया था। बाबरी पे भगवे रंग के झंडे भी लहराए थे और वहां राम भगवान की मूर्ति तक स्थापित की थी। आज भी अपने इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए 22 जनवरी 2024 को हो रहे राम मंदिर की ओपनिंग में भी सिख्स राम मंदिर बनने की खुशी में लंगर रखने वाले हैं। जो विरासत में उनकी पीढ़ी में वेल आई वुड से ये कोई नई और स्ट्रेंज बात नहीं है। इतिहास में भी जब कभी भी हिंदुओं पे कोई भी खतरा आया है, सिख्स हमेशा हिंदुइज्म के लिए खड़े हुए हैं। इनफैक्ट क्या आप जानते हो, एक सिख गुरु ने तो कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी जान तक कुर्बान की थी। आई नो ये सारे स्टोरीज मूवमेंट काफी कम लोग ये जानते हैं कि नवंबर 1858 में बाबा फकीर सिंह खालसा, एक निहंग सिख गुरु पे राम जन्मभूमि मूवमेंट शुरू करने का पहला कोर्ट केस दर्ज है, क्योंकि 28 नवंबर को बाबा फकीर जी 25 हथियारबंद निहंग सिखों के साथ बाबरी मस्जिद के अंदर घुस गए थे
और फिर वहां घुसकर उन्होंने रातों रात एक चबूतरा यानी कि एक प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर सबसे पहले तो राम भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी। उन्होंने फिर बाबरी पे भगवा रंग के झंडे भी फहराए और उन्होंने उस मूर्ति की पूजा और हवन करके पूरे बाबरी के दीवारों पर राम राम भी लिख दिया। इसके बाद अगले कुछ 10-12 दिनों तक वो सारे सिख साधुज वही रहने लग गए, लेकिन फिर इसके खिलाफ बाबरी के एक ऑफिशियल यानी कि खतीब जिनको कहा जाता था, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक कंप्लेंट फाइल कर दी। इस कंप्लेंट के बाद बाबा फकीर पर फिर एक केस दर्ज हुआ और उनको 10 दिसंबर 1858 को मंदिर से फोर्सफुली निकाला गया और फिर ये बन गया राम जन्मभूमि मूवमेंट का पहला रजिस्टर्ड केस। इस इंसिडेंट को बाय द वे 2019 की सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में भी एज अ प्रूफ यूज किया गया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये पहला रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जिसे द बैटल फॉर रामा में इसके पीछे का एक रीजन बताया गया है और वो रीजन है 1855 में हुए हनुमानगढ़ी कॉन्फ्लिक्ट, जो टेम्पल एक्चुअली आज भी राम जन्मभूमि मंदिर के जस्ट 450 मीटर्स पे ही सिचुएटेड है। सो कहानी शुरू होती है 8 फरवरी 1855 के दिन से, जिस दिन एक ब्रिटिश रेसिडेंट जेम्स ऑट्रम ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को एक लेटर लिखा। नाउ लेट मी क्लियर दिस कि उस वक्त ना ब्रिटिश रूल जरूर था, लेकिन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन तभी भी लोकल राजाओं के हाथ में ही होता था और अयोध्या भी उस समय मुगल्स के बाद उनके द्वारा वहां पे प्लेस्ड नवाब्स यानी कि गवर्नर्स के रूल में आ गया था। नाउ जो नवाब अयोध्या में थे वो वाजिद अली ही थे। सो इन्हीं नवाब को एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स ने एक लेटर लिखा कि शाह गुलाम हुसैन नाम का एक क्लेरिक एक मॉब के साथ हनुमानगढ़ी टेम्पल पर जल्दी हमला करने वाला है। एक्चुअली शाह गुलाम का मानना था कि उस मंदिर के जगह पे पहले एक मस्जिद था जिसे उन्हें रिक्लेम कर लेना चाहिए। अब इस अटैक को रोकने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने तो नवाब से आर्मी भेजने के लिए कहा, बट वो नवाब इस अटैक को रोक नहीं पाए। अब आगे जो होता है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे ये खबर फैली कि मंदिर में अटैक होने वाला है तो उस मंदिर के पास कई साधु जमा होने लग गए अचानक से। लेकिन वो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं काफी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन तो जैसे ही ये खबर फैली कि मंदिर में अटैक होने वाला है, उस मंदिर के आसपास अचानक से कई सारे साधु जमा होने लग गए। इन साधुज ने फिर गुलाम शाह की अटैक को ना ही सिर्फ रोका बल्कि उसे बुरी तरह से हरा भी दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी हार के बाद भी ये मुद्दा रुका नहीं और इस पर कॉन्फ्लिक्ट्स और अटैक्स चलते ही रहे। लेकिन फिर फाइनली 11 अगस्त 1855 को कुछ साधुज ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास 2 बॉन्ड्स यानी कि अंडरटेकिंग साइन करते हुए भेजा। इसमें उन्होंने 2 मेजर बातें लिखी थी। पहली ये कि हम साधु लड़ना नहीं चाहते, हमें पीस चाहिए, और दूसरी बात ये थी कि वहां के नवाब और ब्रिटिशर्स एक 3 मेंबर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाए जो फिर उस हनुमानगढ़ी टेम्पल में जाकर ये इन्वेस्टिगेट करे कि वहां वाकई में एक मस्जिद है या नहीं। इस कमेटी में साधुज ने इन 3 मेंबर्स को इंक्लूड करने को कहा। पहला मुस्लिम्स के साइड से आगा खान, हिंदूज के साइड से राजा मान सिंह और एक ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन और को। फिर साधुज ने यह भी प्रॉमिस किया कि अगर ये कमेटी कहे कि हनुमानगढ़ी मंदिर में मस्जिद है तो वो तुरंत इसे खाली कर देंगे। साधुओं के इस रिक्वेस्ट को मानते हुए नवाब ने भी तुरंत कमेटी बनाने की परमिशन दे दी और उस कमेटी ने मंदिर की जांच भी करना शुरू कर दिया। इस कमेटी का रिजल्ट एक्चुअली में हिंदुओं के पक्ष में आया कि वहां पे कोई मस्जिद नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमेटी के इस डिसीजन के बाद भी वहां पे राइट्स नहीं रुके। अयोध्या में लगातार छोटे मोटे राइट्स इस मुद्दे पे चालू ही थे। लेकिन बात तब बिगड़ी जब सितंबर 1855 को एक दूसरे क्लेरिक आमिर अली ने फिर से उसी हनुमानगढ़ी टेम्पल पे एक दूसरा मेजर अटैक इनिशिएट किया। अब वैसे तो वो दूसरा अटैक भी एक फेलियर ही था, लेकिन आमिर अली के इस अटैक के रिटेलिएशन में निहंग साधु बाबा फकीर जी ने बाबरी राम जन्मभूमि को ही पूरा कैप्चर करके वहां पे भगवान राम की पूजा स्थापित कर ली। लेकिन एक मिनट, इस पूरे मुद्दे में तो अभी तक मैंने सिखों का नाम ही नहीं लिया। एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ और उससे ये पूरा मुद्दा शुरू हो गया। तो आखिर इस पूरे मुद्दे पर सिख्स गुस्सा क्यों हुए और उन्होंने रिटेलिएट क्यों किया? वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि कई रिपोर्ट्स का मानना है कि हनुमानगढ़ी के उस मंदिर को बचाने के लिए लड़ने वाले उन साधुओं के साथ सिख निहंग साधुस भी शामिल थे। यस, सिख्स भी उस मंदिर को बचाना चाहते थे और इसीलिए जब हनुमानगढ़ी टेम्पल पर उसी मंदिर पर दूसरा अटैक हुआ तब उसके रिटेलिएशन करने के लिए बाबा फकीर ने बाबरी को ही अपने कब्जे में ले लिया। एंड लेट मी टेल यू, ये पहली बार नहीं था जब सिखों ने राम मंदिर के लिए स्टैंड लिया। क्या आप जानते हो, साल 1672 में खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने राम जन्मभूमि के लिए औरंगजेब से वॉर लड़ा था और इस बात के सबूत आज भी अयोध्या के गुरुद्वारा श्री ब्रह्मकुंड साहिब में रखे हुए हैं। इस हिस्टोरिक इवेंट पे जी न्यूज ने एक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया था जिसमें उन्होंने खुद अयोध्या के गुरुद्वारा में विजिट करके इस इवेंट के बारे में काफी सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए। सो कहानी कुछ ऐसी है कि 1660s में औरंगजेब ने राम जन्मभूमि में हो रहे राम
राम भगवान की पूजा को कंप्लीटली बंद करने के लिए अयोध्या के साधुओं पर अटैक किया था। अब इसके रिटेलिएशन करने के लिए एक साधु बाबा वैष्णव दास साधुओं की एक आर्मी बनाकर औरंगजेब के खिलाफ लीड तो कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उनकी आर्मी हल्की सी छोटी थी। इसीलिए बाबा ने गुरु गोबिंद जी से मदद मांगी और गोबिंद जी ने भी उनकी मदद के लिए तुरंत हाँ कर दी और निहंग सिखों की आर्मी को साधुओं के साथ लड़ने के लिए भेज दिया। इस लड़ाई में फिर साधुस और सिख आर्मी ने मिलकर मुगल्स को बुरी तरह से हरा दिया और ऐसा कहते हैं कि इसके बाद कई सालों तक मुगल्स ने अयोध्या पे अटैक करने की कोशिश तक नहीं की। जी न्यूज ने यह भी बताया कि आज भी इस जंग में लड़े गए सिख वेपन्स को ब्रह्मकुंड साहिब गुरुद्वारा में आज भी रखा हुआ है और गुरुद्वारा के चीफ ग्रंथी गुरजीत सिंह खालसा जी बताते हैं कि वॉर जीतने के बाद खुद गुरु गोबिंद जी ने अयोध्या की जमीन हिंदुओं को सौंपी थी। इनफैक्ट इससे भी पहले 1510 में ही खुद गुरु नानक देव जी ने भी राम जन्मभूमि मंदिर में विजिट करके वहां भगवान राम के दर्शन लिए थे और इस बात को भी एज अ लिटरेरी प्रूफ खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही अभी हाल ही के वर्डिक्ट में यूज किया था, क्योंकि इससे ये प्रूव हो रहा था कि वहां पे बाबरी मस्जिद बनने से पहले एक राम मंदिर मौजूद था। अब ऑफ कोर्स इतने सारे स्टोरी सुन के एक नेचुरल क्वेश्चन तो उठता ही है कि सिख गुरुज क्यों राम मंदिर को सपोर्ट करते आए हैं हिस्टोरिकली। सो वेल, इस सवाल के कई गुरु गोबिंद जी की ऑटोबायोग्राफी बचित्र नतक का रेफरेंस देते हुए बताया है कि क्यों सिख गुरुज भगवान राम को फॉलो करते थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी में गोबिंद जी ने लिखा है कि वो भगवान राम के छोटे बेटे लव के वंशज है और गुरु नानक देव जी भगवान राम के बड़े बेटे कुश के वंशज है। उस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि इन क्लेम्स को बाकी कई ऑथेंटिक तेज बहादुर जी के मेमोरी में ही शीशगंज साहब गुरुद्वारा भी बना हुआ है। लेकिन हाँ, हिंदूज का साथ देने के अलावा भी सिख्स हमेशा से ही देश के लिए भी आगे खड़े हुए हैं। क्या आप जानते हो कि आज हमारे देश के पॉपुलेशन में भले ही सिखों का काउंट सिर्फ 2% है, पर इंडियन आर्मी में सिख कंट्रीब्यूशन 10% है। इसके अलावा सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है, यानी सिख रेजिमेंट को सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, वीरता बहादुरी के अवार्ड्स मिले हैं, विच इज एक्चुअली वेरी इंस्पिरेशनल। लेकिन राम मंदिर निर्माण की महत्वपूर्ण श्रेय जाना चाहिए तो आईसीएस के नायर साहब को और ठाकुर गुरदत्त सिंह को। नायर साहब के टाइम प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी को जब पता चला मूर्ति मिली, सबका मानना था कि मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति को झूठा साबित और हटाने के लिए नेहरू ने फोन करा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत जी को कि भाई अंदर से मूर्ति को हटाओ। गोविंद साहब ने फोन करा कलेक्टर को। कलेक्टर कौन था? के नायर साहब, और उनके नीचे ऑफिसर थे ठाकुर गुरदत्त सिंह, और दोनों को बोला गया भाई मूर्ति को हटाओ, लेकिन दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। दोनों ने मना कर दिया, हम मूर्ति नहीं हटा सकते, मूर्ति हटाएंगे तो शहर जलेंगे, दंगे होंगे, लोग मरेंगे। बहुत प्रेशर दी गई दोनों को, बार बार नेहरू ने फोन करा एंड फाइनली दोनों ने रिजाइन कर दिया। और नायर साहब ने नेहरू सरकार को सीधा कह दिया आप ताला लगा दो, एंट्री बंद कर दो, केस को कोर्ट ले जाओ ताकि कोर्ट फैसला करे। और उधर नायर साहब रिजाइन के बाद लॉ प्रैक्टिस करने लगते हैं ताकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ सके। और तब से लोगों का यही मानना है सबसे पहला कार्ड सेवक यही दो शख्स, और राम मंदिर इन्विटेशन कार्ड में इन दो शख्स का ही नाम पहले रखा गया। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है। 1990 में यहां अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने की बात कहकर मुलायम सिंह यादव फंसते नजर आ रहे हैं। निहत्थे राम भक्तों पर जो गोली चलाई थी, उत्तर प्रदेश के लोग सपा को कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने अन्याय किया था, जुल्म किया था, मासूम यूपी के लोगों को, देश के लोग वहां गए थे, उन पर गोली चलाई थी। मैं मुलायम सिंह नहीं हूँ, मैं मौलाना हूँ, मैं मौलाना मुलायम हूँ, तो साफ दिखता है कि वो राम भक्तों के ऊपर कोई भी अत्याचार कर सकते हैं, वो उन्होंने साफ कर दिया। मुलायम सिंह यादव पर बीजेपी नेताओं का यह हमला उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने अयोध्या के कार सेवकों पर गोली चलवाने को अपनी जीत का सर्टिफिकेट माना है। मुलायम ने कल पार्टी नेताओं से कहा था कि इतना बुरा हाल पार्टी का तो अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने के बाद भी नहीं हुआ था। गोली चलवाने के बाद 105 विधायक जीत कर आए, जबकि लोग उस समय चिल्लाते रहे कि हिंदुओं का हत्यारा आ गया है, देश की सुरक्षा के लिए और भी मारना पड़ता तो सुरक्षा बल मारते। दर्शकों को हम बता दें कि 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी, उसमें 28 हिंदुओं की मौत हुई थी। अब विश्व हिंदू परिषद ने इस बयान को आधार मानते हुए मुलायम सिंह पर हिंदुओं की हत्या का केस चलाने की मांग योगी सरकार से की है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। Do you know that once the entire city of Ayodhya was saved by a small monkey from mighty bomb blast? Actually, this incident was of 1998 when Delhi police came to know that 20 kilo RDX has reached Ayodhya. It was discovered that the explosion of the bomb was only a minute away. And just when a few seconds were left, the police noticed that a small monkey was cutting a wire. The police became curious whether the bomb is inside the tank. After opening, they came to know that the bomb is already defused.
It is said that Lord Hanuman in the form of small monkey saved Ayodhya from bomb blast. I was the only Muslim who had participated in that excavation. This is as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. And that was my statement. Hence, Muslims should have willingly handed it over for Hindu community to construct a huge Rama temple. Number two, it was against the whole Muslim communities जो ना वो पूरा उस टाइम में पूरी पावरफुल था, उन्हीं के खिलाफ था. आपको मुश्किलों को झेलना पड़ा. अब भी झेलता हूँ. तो हालात थे, रियलिटी है, उसी की बात करता हूँ. क्योंकि मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए था. अगर छोड़ दिया होता, रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिटीज वो बहुत अच्छा होता. मुसलमानों के लिए तो सिर्फ एक मस्जिद, लेकिन हिंदू के लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं है. पूरा हिंदुइज्म का दार मदार है.